سب سے پہلے بلیٹن میں بات کریں گے سیاحتی مقام ملکہ کوہسار موت کی وادی بن گیا۔ برف باری نے راستے بند کر دیے، انتظامی غفلت کھل کر سامنے آ گئی۔ سڑکوں پر درخت اور بجلی کے گرے کھمبے اور گاڑیوں میں مدد مانگتے سیاح دل دہلا دینے والے منظر پیش کرتے رہے۔ سینکڑوں گاڑیاں برف میں پھنس گئیں، سردی میں ٹھٹرتی زندگی رات بھر موت سے لڑتی رہی۔ برف میں پھنسے 23 سیاح ابدی نیند سو گئے۔ موت کی یلغار برف سیاحوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی۔ مری میں شدید برف باری سے زندگی مفلوج، 1 لاکھ سے زائد سیاح مری اور گلیات آئے اور پھنس کر رہ گئے۔ کئی روز سے مری اور گلیات میں پھنسے سیاح اب بھی بے بسی کی تصویر بنے ہیں۔ مری روڈ پر سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں، لوگ اپنے اہل خانہ اور دوست احباب کے ساتھ ٹھٹر کر رہ گئے۔ کئی جانیں چلی گئیں، کئی کو ریسکیو کر لیا گیا تو کئی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر پہنچے۔ سڑکیں بند ہو گئیں، بجلی کا نظام دھرم برہم ہو گیا، دور دور تک صرف گاڑیاں پھنسی ہوئی نظر آئی۔ صورتحال اب بھی ویسی ہی ہے۔ برفباری دیکھنے کے لیے مری کھچے چلے آنے والے سیاح اب مری سے نکلنے کے لیے دہائیاں دے رہے ہیں۔ بچوں کے ہمراہ خواتین اور احباب کے ساتھ جانے والے افراد نے مدد کی اپیلیں کرتی۔ مال روڈ پہ رہائش کا ہوٹل کی وہ بہت زیادہ ایشو ہے، فیول بھی ختم ہو گیا ہے تو یہ بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آپریشن بہت زیادہ سلو ہے۔ ٹھیک ہے آرمی ہیلپ کر رہی ہے لیکن پلیز تیزی لے کے آئیں کام میں تھوڑی سی۔ بول کے نمائندے کو ایک شخص نے جذباتی انداز میں بتایا کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ بس ہم نے ادھر سے نکلنا ہے، گاڑیاں اتنی لمبی لگی ہوئی ہیں، یہ ہمیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی جو ہے نا یہاں سے ہمیں روانہ کیا جائے اور سڑکوں کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے۔ ایسے حالات میں اللہ کو بھی یاد رکھا گیا۔ ایک سیاح نے اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مری سانحے میں بچوں کی مسکراہٹیں کئی فٹ برف میں دب گئیں۔ پیچھے رہ جانے والے صرف انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ کئی لوگ اب بھی زندگی کی امید لگائے مدد کے منتظر ہیں۔ مری میں برفباری کے باعث سیاحوں کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ خوشی خوشی حسین نظارے دیکھنے والی فیملیز انتظامی غفلت کے باعث برف میں پھنسنے اور جان کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد پولیس کے ASI اور ان کے خاندان کے 7 افراد کی بھی زندگی اسی برف کی تہ میں کھو گئی۔ مردان کے 4 دوست بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ مری میں برف باری، نامناسب انتظامات، 1 درجن سے زائد افراد حکومتی نااہلی کی بھیٹ چڑھ گئے کہ گالے خونی بن گئے، ہنستے بستے آشیانے اجاڑ دیے۔ بے جان پڑا یہ خاندان ہے اسلام آباد پولیس کے ASI نوید کا، جو بچوں کو برف باری کا نظارہ دکھانے نکلے تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ ان کا آخری سفر ہوگا۔ برف دیکھی آپ نے؟ تنگ ہو گئی تھی آپ نے؟ بہت اچھا سفر ہے۔ واپس جانا ہے؟ واپس نہیں جانا۔ کے دوران کار میں بچوں کے ساتھ کھیلتے، ہنستے اور مسکراتے لمحات ویڈیو نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا۔ اہل خانہ غم سے نڈھال، گھر والوں کا رو رو کر برا حال۔ ASI کے کزن طیب گوندل نے کہا کہ آخری بار جب نوید سے بات ہوئی تو وہ گھبرایا ہوا تھا۔ بچے رو رہے تھے، دودھ نہیں تھا بچوں کے پاس، اور آپ کو میں بتاؤں کہ بس کیا سچویشن تھی۔ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اب وہ ہیٹر آن تھا، گاڑی میں بچے سو رہے تھے، اب ان کو پریشانی یہ تھی کہ میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مری میں سیر و تفریح کے لیے آنے والے 4 دوست بھی اس برف میں دب گئے۔ بڑا ماحول سا کیا ہے آج میں دفعہ برف دیکھی نہیں زیادہ۔ مری اور گلیات سمیت نواحی علاقوں میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے پاک فوج پیش۔ آرمی انجینئرز نے کئی راستے کھول دیے، لوگوں کو خوراک فراہم بھی کی جانے لگی۔ پولیس کے جوان بھی سیاحوں کی مدد کے لیے موقع پر موجود، گرم چائے پلائی، بیشتر سیاحوں کو سرکاری ریسٹ ہاؤس اور ہوٹل تک پہنچایا۔ سفید پوش وادی، کئی زندگیاں کھا گئی۔ مری میں ہر طرف موت کا منظر دیکھنے کو ملا۔ سیاح غیبی مدد کے منتظر رہے۔ ایسے میں پاک فوج کے دستے فرشتے بن کر سیاحوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ مری اور نواحی علاقوں میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کمانڈنگ آفیسر میجر جنرل واجد عزیز کہتے ہیں کہ کوشش یہ ہے کہ تمام لوگوں کو امداد پہنچائی جائے، کسی سیاح کو بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مختلف پوائنٹس کے اوپر، چیکا گلی کے اوپر، اسی طریقے سے سنی بینک سپلائی پوائنٹ، اس علاقوں میں گھڑیال کیمپ کے اندر اس جگہ کے اوپر امدادی کیمپ، ریلیف کیمپ اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں۔ آئس پیار کے مطابق پھنسے ہوئے لوگوں کو پناہ اور خوراک کے لیے APS کلڈانا منتقل کر دیا گیا۔ مری ڈویژن میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ اب تک بچوں سمیت 300 سے زائد متاثرہ افراد کو آرمی، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ٹیمز نے طبی امداد فراہم کی ہے۔ جھیگا گلی، کشمیری بازار، لوئر ٹوپا اور کلڈانا میں پھنسے ہوئے 1000 سے زیادہ لوگوں کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق جھیگا گلی سے کلڈانا TRO کلیئر کر دیا گیا ہے۔ کلڈانا سے باڑیاں میں آرمی انجینئرز کے دستے
सड़क की बहाली के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। उधर ज़िला इंतजामिया भी सयाहों की मदद के लिए पहुंची। पुलिस एहलकारों ने गर्म चाय सयाहों को पेश की। बेशतर सयाहों को सरकारी रेस्ट हाउस और होटलों तक पहुँचाया गया। मरी की शदीद सर्दी में फंसे अफराद की मौत सर्दी से हुई या वजह कार्बन मोनोऑक्साइड थी। माहिरीन का कहना है कि अक्सरियत लोग सर्दी से बचने के लिए गाड़ी के हीटर ऑन कर देते हैं और शीशे मुकम्मल बंद कर देते हैं, जिसके बायस जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जन्म लेती है और वही इनकी मौत का सबब बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी जहरीली गैस जो बंद कमरे या बंद गाड़ी में हीटर ऑन करने से पैदा होती है। मरी में होने वाली ज्यादा अमवात इसी कार्बन मोनोऑक्साइड का नतीजा हो सकती है। लोग सर्दी से नहीं मरे बल्कि उन्होंने अपनी गाड़ियों को गैस चैम्बर बना दिया था। खिड़कियां बंद थी, लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे थे। इसी दौरान गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शामिल हुई होगी और लोगों की अमवात हो गई होंगी। तिब्बी माहिरीन ने भी यही खदशा जाहिर किया। डॉक्टर फहीम ने कहा, बर्फ में फंसी गाड़ियों ने सर्दी से बचने के लिए हीटर्स ऑन किए। हवा का इखराज न होने से ये वाकया पेश आया होगा। माहिरीन ने कहा, जब भी ऐसा मौका हो गाड़ी का शीशा थोड़ा सा उतार कर रखें, अंदर जहरीली गैस को हरगिज रुकने का मौका न दें। शहरी हो जाएं होशियार, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। मरी समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई, एक और अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने एलामिये में कहा कि मरी की सूरत हाल पर 3 रोज कबल अलर्ट जारी किया था, जिसे इंतजामिया ने नजरअंदाज किया और सयाहों को मरी जाने से नहीं रोका। शहरी हो जाएं होशियार, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। मरी समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई, एक और अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने एलामिये में कहा कि मरी में सूरत हाल पर 3 रोज कबल अलर्ट जारी किया था, जिसे इंतजामिया ने नजरअंदाज किया और सयाहों को मरी जाने से नहीं रोका गया। एक और बार आपको आगाह कर रहे हैं, मरी समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई, एक और अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने एलामिये में कहा, मरी की सूरत हाल पर 3 रोज कबल अलर्ट जारी किया था, जिसे इंतजामिया ने नजरअंदाज किया। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं, डीजी मेट मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रियाज साहब, आइंदा कुछ दिनों में कैसा मौसम रहेगा मरी का, इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, मौसम आज स्लाइटली आज क्लाउडी टाइप वेदर रहेगा और आज के बाद फिर ड्राई वेदर है, कोई बारिश की चांसेस 4-5 दिन तक नहीं है। रियाज साहब, ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि 10 साल रिकॉर्ड टूटा है मरी में बर्फबारी का, क्या ऐसा ही है? जी जी। रियाज साहब, क्या किसी किस्म का कोई अलर्ट जारी किया गया था? जी बिल्कुल, वो पहले 31 को इशू किया हुआ था और फिर उसके बाद 5 तारीख को भी जब ये सिचुएशन चेंज हो रहा था, ज़्यादा स्वेरिटी आ रही थी वेदर सिस्टम में, तो फिर इसको अपग्रेड कर दिया, एक दूसरा भी एडवाइजरी इशू की है। अच्छा रियाज साहब, मजीद कितने रोज तक बर्फबारी जो है वो हो सकती है? नहीं, अभी फिलहाल तो आज कुछ चांस बन रहा था, कल जो सिचुएशन बना था उसके हिसाब से आज, लेकिन अब कोई ऐसी बहुत ही कम चांस है कि आज बर्फबारी हो जाए और ज़्यादातर क्लाउडी टाइप वेदर हो सकता है। और सर्दी की शिद्दत के हवाले से भी बताएगा रियाज साहब। सर्दी बढ़ेगी, अब जैसे मैंने बता दिया कि आज -2 डिग्री तक आ गया है मरी में टेम्परेचर, और ये 2-3 दिन के दौरान स्लाइटली इसी तरह रहे, डिग्री मजीद कम हो सकता है, -3 तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अपनी ज़बान की तेज़ी की ज़द में आ गए। वज़ीर आज़म के नक्श कदम पर चलते हुए यू टर्न ले लिया। 2 दिन पहले ट्वीट किया, मरी में सयाहत में इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है, लेकिन फिर जब मरी में बर्फानी तूफान के बायस मलका कोहसार मौत की वादी में बदल गई तो यू टर्न ले लिया। कहा, इंतजामिया ने 1 हफ्ते पहले ही दरख्वास्त की थी कि मरी ना जाए। इस यू टर्न पर अपनी ही पार्टी रहनुमा और अवाम ने सोशल मीडिया पर उनकी खूब खबर ली। किसी ने सच कहा है, पहले तोलो फिर बोलो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कम ही ऐसा करते हैं। एक बार फिर उनकी जुबान की तेजी उन्हें फंसा गई। ट्वीट किया, मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और अकामत गाहों के किराए की गुना ऊपर चली गई है। सयाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है।
लेकिन जब बर्फानी तूफान और हद से ज्यादा रश मौत बांटने लगी तो सिर्फ 2 दिन बाद ही अपनी बात से फिर गए। कहा इंतजामिया ने 1 हफ्ते पहले ही दरख्वास्त की थी कि मरी ना जाएं। जब 1 हफ्ते से जो इंतजामिया ये दरख्वास्त कर रही थी कि वहाँ पे नहीं जाएं, अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ उतना उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। फवाद चौधरी को न सिर्फ अवाम ने बल्कि अपनी पार्टी रहनुमाओं ने भी खूब खरी खरी सुना दी। मरी और इसके गिरदोनवा में रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। हेड ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन डॉक्टर अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, कुछ इस हवाले से बताइएगा। कल जो है सारा दिन और फिर रात को भी जो है वो इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलता रहा है। उसमें जो रोड क्लियरेंस थी और वो भी की गई। कुछ रोड्स जो थी वो पार्शली ब्लॉक थी, उनको जो है वो क्लियर कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि जो ये जो इलाका है जीका गली से कुलडना की रोड जो पहले पार्शली ब्लॉक थी वो क्लियर कर दी गई है। सिमिलरली कुलडना से ऑनवर्ड आगे बाड़ियों तक भी जो है वो रोड क्लियर कर दी गई है। वो सिचुएशन काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में है और रोड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं। जो एरिया जहां से जो कि पिछले 2 दिन में ब्लॉक था वो अब जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। जी अच्छा अब्दुर्रहमान, ये भी बताइएगा सयाहों को किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है, क्या तादाद बताई जा सकती है कि अब मरी में कितने सयाह मौजूद हैं? एक्चुअली जो गाड़ियां स्टक हुई हुई थी वो ऑलमोस्ट जो है वो निकल चुकी है उस एरिया से। और कल भी शाम को यही ऑपरेशन चल रहा था कि जो लोग ऑन फुट जा रहे हैं उनके लिए भी गाड़ियां अरेंज की गई, शटल सर्विसेज अरेंज की गई कि वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। अभी काफी हद तक लोग जो हैं वो मरी से जो है वो निकल चुके हैं। चीदा फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए भी जाने की अरेंजमेंट जो है वो की जा रही है। अब्दुर्रहमान साहब ये भी बताएगा मुकम्मल तौर पर सूरत हाल को नॉर्मल होने में कितना वक्त लग सकता है? वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया था कि मरी के रास्ते आज रात 9 बजे तक के लिए बंद किए गए। देखिए चूंकि स्नोफॉल भी अगले दिनों में उसकी फोरकास्ट है और इस हवाले से जो है वो यही डायरेक्शन थी कि जो गवर्नमेंट की कि जो है वो फैमिलीज जो है वो जो स्टक हुई हुई हैं वो इमीडिएटली जो है ना अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना कर दी जाए। तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस सिलसिले में जो तमाम डिपार्टमेंट्स थे वो उन्होंने अपनी मशीनरी लगा के अपनी ह्यूमन रिसोर्स लगा के जो है वो दी है। तो अभी इस वक्त जो है वो सूरत हाल जो है काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में है। इसमें कोई भी फैमिली जो है वो ऐसे नहीं है कि वो स्टक हुई हो। हाउएवर कि कुछ गाड़ियां हैं जो कि लोग जो छोड़ के चले गए थे वो साइड पे खड़ी हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, आप गाड़ियों के हवाले से बात करें तो इसी हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट भी सामने आया था। उन्होंने बताया कि 600 से 700 गाड़ियों को क्लियर किया गया है, मरी से निकाला गया है, क्या ऐसे ही? जी मैं वही कह रहा था कि गाड़ियां जो हैं कुछ फैमिलीज थी वो ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, उनको साइड पे कर दिया गया और अब उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो आए और आके अपनी गाड़ियां जो है वो ले जाएं। हाउएवर जो जिनके गाड़ियों के साथ उनकी फैमिली या ड्राइवर्स वगैरह मौजूद थे उन सबको वहां से रवाना कर दिया गया। जी ठीक है, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, हेड एजेंसी ऑपरेशंस मरी में बता रहे हैं कि सूरत हाल अब काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि काफ़ी शाहराहों को खोल दिया गया है, जबकि एक आध शाहरा जो बंद है उसे भी जल्द अज जल्द खोल दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों को भी रेस्क्यू किया जा चुका है और अब सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज होती दिखाई दे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।